بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, پاکستان نے بھارت کے لیے سرپرائز تیار کر لیا ہے. 28 اور 29 اکتوبر کو پاکستان کی ایئر سپیس بند ہوگی. سرپرائز جو بھارت کو دیا جائے گا, آپ کو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ایئر سپیس کیوں بند کی جاتی ہے, لیکن جو سرپرائز دیا جائے گا وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک ایسی دفاعی ڈیل ہوئی ہے جس نے بھارت پر صدمہ طاری کر دیا ہے. مودی سرکار پر خاموشی چھا گئی ہے, ہو کا عالم ہے, اور مودی سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اب ویپنز بنیں گے, وہ بھی جدید ترین. تو ہمارا کیا ہوگا؟ کون سے ویپنز بنیں گے؟ کون سی بڑی دفاعی ڈیل ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالیاں دی ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ٹائمز آف اسرائیل کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر کیا کہا گیا ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اف نیتن یاہو, وہی ایف والا ٹرم جو آپ کہتے ہیں, ہر گورے کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ایف دا ڈیل دین ڈونلڈ ٹرمپ ول ایف, وہی میں بھی جذبات میں آ کر وہ لفظ نہیں کہہ سکتا, لیکن ول نیتن یاہو. تو یہ اتنے تلخ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں ناظرین. کس کے لیے؟ نیتن یاہو کے لیے. اسرائیل جو ہے وہ باز نہیں آیا. اسرائیل کے کچھ خفیہ منصوبے ہیں جو بے نقاب ہو چکے ہیں. مسجد اقصی کو گرانے کے حوالے سے کیا منصوبے ہیں اور اس پر عمل درآمد کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسرائیل کو وارن کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے جو آخری وارننگ دی ہے اسرائیل کو, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین, آپ سب پر سلامتی ہو, اور شروع کرتے ہیں ناظرین. 28 اور 29 اکتوبر کو جو پاکستان کی ایئر سپیس بند رکھی جانے والی ہے, وہ کیوں ناظرین؟ اس لیے بند رکھی جائے گی کیونکہ بھارت جو کہ اپنی ایئر سپیس کو, ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بند رکھنے والا ہے, ملٹری ڈرلز کرے گا, پریکٹسز کرے گا. فتح سیریز انہوں نے دیکھ لی, شاہین سیریز انہوں نے دیکھی ہوئی, ہماری النصر سیریز دیکھی ہوئی ہے. اب 28 اور 29 اکتوبر کو کچھ میزائل ٹیسٹ کیے جائیں گے, لانگ رینج میزائل, اور ایسے میزائلز جو کہ پاکستان کی تاریخ کے ڈیڈلی اور لیتھل ویپنز میں کنسیڈر کیے جائیں گے. تو بھارت جو براہمس کرتا ہے, اب بھارت کے لیے مشکل میں اضافہ اصل اب شروع ہونے والا ہے. یہ مشکل میں اضافہ ناظرین جب ہوگا, آج سے چند دن بعد, بلکہ ہم کہیں گے چند گھنٹوں بعد, کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے بعد دیکھیے گا کہ بھارت پر کیا خوف طاری ہوتا ہے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا. کیونکہ ہم نے پہلے بھی ان کے چن کر جو ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا تھا, ایسے میں پاکستان اپنی راکٹس کو, پاکستان اپنے میزائلز کو جو اپ گریڈ کر رہا ہے, اور پھر پاکستان کی جو راکٹ فورس کا قیام جو کیا تھا وزیر اعظم نے, جس کا اعلان کیا تھا, تب سے بھارت پر جو ہے وہ خوف طاری ہے, مودی سرکار پر خوف طاری ہے. یہ پہلا خوف مودی سرکار کے لیے. دوسرے خوف کی بات کرتے ہیں جس سے دلی سرکار جو ہے وہ چپ بیٹھی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ایک تاریخی ڈیل ہوئی ہے اسلامی ملک کی. کس اسلامی ملک کی ناظرین؟ ترکیہ کی. جی ہاں, ترکیہ نے بنگلہ دیش کو جدید ترین سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا فیصلہ کیا, اور ان کے ساتھ ایک اور ڈیل کی ہے جس کے تحت بنگلہ دیش کے اندر اب ان کے جدید ترین ویپنز, ڈرونز بنیں گے. اور اس معاہدے کو, اس ڈیفنس ایگریمنٹ کو, اس ڈیفنس پیکٹ کو ایک درد سر قرار دیا جا رہا ہے بھارت کے لیے. بھارت کے لیے درد سر اس لیے بھی قرار دیا جا رہا ہے ناظرین کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس پہلے ہی ترکیہ کے کافی لیتھل ویپنز موجود ہے, جس کے اندر بیرکتار TB2 ڈرون شامل ہے, جس کے اندر TRG-300 میزائل بھی شامل ہے. یہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے. تو اب سائپر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس آ جائے گا. اب جدید ترین ڈرونز بھی مینوفیکچر ہوں گے کہاں پر؟ بنگلہ دیش کے اندر. مطلب ترکیہ کی انویسٹمنٹ اب بنگلہ دیش آ چکی ہے, اور بنگلہ دیش کے ساتھ اب پنگا لینے کی اگر کوشش کی گئی, یا پھر ان کے دوست برادر اسلامی ممالک کے ساتھ, تو پھر بھارت کو 2 یا 3 اطراف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. That's very simple and clear. اس کے بعد ناظرین بات کی جائے اب جو وارننگز جاری کی گئی ہیں, ایک تو ترکیہ کی جانب سے, دوسرا بڑا قدم یہ ہے کہ اسرائیل کو آخری وارننگ جاری کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نیتن یاہو کے لیے, ایک رپورٹ میں ناظرین ٹائمز آف اسرائیل کی, تو ان الفاظ کو تاریخی بھی کہا جا رہا ہے جو گالیاں دی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے الفاظ آج تک استعمال نہیں کیے گئے. ناظرین وہ اب کیوں دی گئی ہیں؟
जवाज़ क्या जवाज़ बना कर दी गई है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? इज़राइल की जो हरकतें हैं वो अपनी हरकतों से तो बाज़ नहीं आ रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो येलो लाइन इज़राइल के लिए डिक्लेयर की गई थी कि इससे पिछले उन्होंने जो है पीछे रहना है उनकी फोर्सेस ने, उसने उनकी खिलाफवर्जी की और आगे उससे जाकर बाड़ बनाना, सरहद बनाना शुरू कर दी है। साथ ही साथ नाज़रीन, उन्होंने एक और मंसूबा तैयार किया है मस्जिद अक्सा के हवाले से। मस्जिद अक्सा के हवाले से, क़िबले अव्वल के हवाले से ये उन्होंने जो खुफिया प्लानिंग मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा को गिराने का एक मंसूबा तैयार किया है, और वो मंसूबा उस पर अमल दरामद इस तरीके से कर रहे हैं कि जदीद तरीन मशीनरी को अंडरग्राउंड अब नस्ब किया गया है, जो कि मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर कर रही है। मस्जिद अक्सा की बुनियादों को कमज़ोर करके उसको गिराने की जो मनसूबाबंदी की जा रही है, उसके बाद वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर की जाएगी। ये मुख्तलिफ ज़राए से हमें ख़बरें मौसूल हो रही है और कह रहे हैं कि ये अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इज़राइल की ये जो प्लानिंग है, ये साजिश जो है वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। नाज़रीन, दूसरा इज़राइल के लिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किया है, ये हम नहीं कह रहे, हमने आपको बार बार बताया कि टाइम्स ऑफ इज़राइल के अंदर ये रिपोर्ट एक शाये की गई है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कहा कि अगर नेतन्याहू ने इस डील को तोड़ने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कर देंगे, जी बस वो कर देंगे, आप समझ आइएगा क्या कर देंगे। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आज तक इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। तो अमेरिका के भी इज़राइल के साथ ताल्लुकात जो है वो हमें ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये जिस तरीके से इक़दामात कर रहे हैं, अगर जिस तरीके से एक्शंस कर रहे हैं, इसी तरीके से गज़ा के अमन मुआहिदे को ख़राब करने की या फिर उस सीज़ फायर को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ तो वो रहे हैं और हमने देखा कि वो हमले भी कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि हमारे हाथ उठे हुए, अगर मुस्लिम ममालिक की फ़ौजें वहाँ पर जाएंगी तामीर के लिए, तामीर नौ के लिए, और बैनुल अक़वामी जो फ़ोर्स जाएगी, हमारे हाथ खड़े हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और नाज़रीन, इसीलिए बरतानिया की फ़ौजों को भी इज़राइल पहुँचा दिया गया था गज़ा अमन मुआहिदे के लिए, तुर्किया की वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और साथ ही साथ कतर की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, झंडे लहरा दिए गए हैं। तो नाज़रीन, अब वहाँ पर जब साफ़ सफाई हो रही है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है, तो 71,000 टन जो है अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स जो है वो मिले हैं गज़ा के अंदर। ये वो है जो कि अनएक्सप्लोडेड थे, ये वही बॉम्ब्स है जो कि जब इजरायली फोर्सेस वहाँ से इनखला कर रही थी, निकल रही थी, तो वो उनके ऊपर जो है वो जब उन्होंने ट्रैवल किया, उनकी मशीनरी उसके ऊपर आई, उनकी फोर्सेस उनके ऊपर आई, तो वो जो है फट गए, जिससे जो है हलाकतें हुई थी और फिर उसका इल्ज़ाम भी फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम पर लगाया गया था। तो ये 71,000 टन जो बारूदी मवाद है ये भी वहाँ से मिला है नाज़रीन। साथ ही साथ अब उनके लिए जो है तुर्किया की जानिब से भी लास्ट वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। तुर्किया की जानिब से सदर जो उनके हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनकी जानिब से जो वार्निंग जारी की गई है कि अगर इजराइल बाज ना आया तो फिर हम भी मैदान में उतर जाएंगे और हम जो है वो कोई इस मर्तबा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उनके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है और बार बार इस वक्त जो है वो बड़ी जो है हार्ड स्टेटमेंट्स के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना ये है कि आखिर इजराइल बाज आता है या फिर नहीं आता। अगर नहीं आया तो फिर अनकरीब मशरिक़ वस्ता के अंदर आपको एक नई जंग मिलेगी, कशीदगी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये नाज़रीन सूरत हाल हमें गंभीर होती हुई दिखाई देगी मशरिक़ वस्ता के अंदर। साथ ही साथ नाज़रीन एक और जो अपसेट मिला है इजराइल को वो ये है कि फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से कहा जा रहा है कि 500 ऐसे लोग, ऐसे स्पाइस जो कि इजराइल के लिए जासूसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनको जो है वो तख्तेदार पर लटका दिया गया है। और ये एक पैगाम है उनके लिए जो कि अपने सरजमीन के साथ गद्दारी करते हैं। तो ये नाज़रीन उनकी जानिब से फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से एक इक़दाम, एक अपसेट दिया गया इजराइल को। और साथ ही साथ नाज़रीन अब सिचुएशन वहाँ पर जो है हमें इंतहाई जो है वो कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। आइंदा आने वाले चंद दिन जो है वो बड़े क्रूशल हो सकते हैं क्योंकि मग़वियों की जो लाशें थी वो वापस कर दी गई हैं इजराइल को। साथ ही साथ मग़वियों को भी उनको दे दिया गया। हॉस्टेजेस जो है जितने भी थे दे ऑल हैव बीन रिलीज्ड एंड हैंडेड ओवर टू इजराइल बाय हमास। तो उनकी जानिब से ये तमाम तर इक़दामात अब हो चुके हैं। अब देखना ये है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर भी हमें एक तो सूरत हाल जो है वो तब्दील होती हुई बड़ी तेज़ी से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एशिया, जनूबी एशिया के अंदर भी हमें सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अलायंसेस बन रहे हैं, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बांग्लादेश के साथ हमारे भी डिफेंस पैक्ट्स काफ़ी हुए हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ भी डिफेंस पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और फिर नेटो के ममालिक, जिस तरह हमने आपको बताया कि रोमानिया पाकिस्तानी एयरफोर्स से तरबियत हासिल करना चाहते हैं। भारत इस तमाम तर सूरत हाल में खामोशी इसलिए इख्तियार किए हुए हैं और सिर्फ गिदड़ भपकियाँ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनके लिए सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो रही। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी,
पाकिस्तान को जो है वो गिराने की कोशिश, नीचा दिखाने की कोशिश मुसलसल वो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे बना रहे हैं। लेकिन नाज़रीन साथ ही साथ उनके तमाम तर प्रोपेगेंडे जो हैं एक्सपोज हो रहे हैं। खुद उनके अंदर इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत नहीं थी तो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। और नाज़रीन वही प्रॉक्सीज आज मिन्नतें तरले कर रही है पाकिस्तान से कि हमें माफ़ कर दो, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन अब अगर एक दिन की बात की जाए, यौमिया $1 अरब से ज़्यादा का नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। जो फ्री में ट्रेड हमने उनको दी हुई थी, ट्रांजिट ट्रेड, और हम जो फ्री में अपनी सरजमीन उनको इस्तेमाल उनके फ़ायदे के लिए दे रहे थे, तो बदले में उन्होंने अपनी सरजमीन हमारे नुकसान के लिए दी। तो ये हमारी रेड लाइन थी। समझ आ गई उन्हें तो ठीक है, भारत को समझ आ गई तो ठीक है, हम तैयार हैं। मिसाइल टेस्ट जो होगा दैट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज फॉर इंडिया। और जिस मर्जी तनाज़े को जवाब बनाकर पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करें, जवाब इस मर्तबा हमारा तारीखी होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।